Good morning, students. In this lecture, we will read a poem, and the title of the poem is To Autumn, that is written by John Keats. So, we have read a poem written by John Keats, and the title of that poem was Ode on a Grecian Urn. So, it's the second poem by John Keats prescribed in our syllabus, and this particular poem, To Autumn, was written in 1819 and it was published in 1820. The poem contained 3 stanzas and every stanza contained 11 lines. So there are 33 lines in this poem. Okay, so the poem basically is written to glorify the autumn season. Okay, usually people talk about spring season. None of or hardly people talk about autumn season. So here the writer is trying to glorify autumn season. He is trying to explain the beauty of autumn season also. He says that every season has beauty. We need to have the eyes, beautiful eyes to see the beauty. ओके सो ये इसमें कह रहा है कि हर सीजन कैसी होती है, खूबसूरत होती है. तो दिस पर्टिकुलर पोइम टॉक्स अबाउट ऑटम सीजन. ओके इन द फाइनल स्टेंजा ही इज़ एड्रेसिंग एंड ही इज़ ऑल्सो एड्रेसिंग द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग सीजन. ये बाद में हम बात कर लेंगे, बट ये जो कविता है वो ऑटम को ग्लोरीफाई करने के लिए लिखी गई है. सो लेट्स रीड द पोइम सीजन ऑफ मिस and the mellowing fruitfulness. It is a season that is full of mist. Mellow is ripeness, सारी चीज़ें पकी हुई हैं. एंड फ्रूटफुलनेस का मतलब यहाँ सारी चीज़ें फ्रूटफुल नज़र आती हैं. तो कह रहा है कि सारी जो चीज़ें हैं ऑटम सीज़न में वो बराबर हो जाती हैं. जो चीज़ें पकी हुई हैं उनको पका दिया जाता है, जो अधकच्ची हैं उनको भी पका दिया जाता है, जो छोटी हैं वो भी पक जाती हैं और बड़ी हैं वो भी पक जाती हैं. एवरीवेयर देयर इज़ ए फ्रूटफुलनेस इन द सीजन ऑफ ऑटम. ओके, and we can see this mist also, and there we can see ripeness and fruitfulness, and there is decline in the temperature also. So the mornings usually find mist. In morning we usually find mist, and जो धुंध है वो हमें दिखाई देती है. And it is close bosom friend. Close bosom friend mean a very close relationship where you can hug each other. Okay, so of the maturing sun, ये कह रहा है कि the sun is also maturing, mean in the process of ripeness and fruitfulness, the sun is also involved in that process. Okay, so here the writer is saying that the season is a friend of a sun also. Okay, and in third line we see that conspiring with him how to load and bless with fruits the vines that round the thatch eaves run. Here the writer is very cleverly using the word conspiracy. Okay, so the writer in third stanza is saying that the season autumn and the sun, that is his or her close bosom friend, both are together and making a conspiracy to load mean किसी में भर देना कुछ, and bless का मतलब आपको पता ही है किसी को किसी चीज़ से bless करना. तो they both are making a conspiracy to load and bless with fruits. They are trying to make these fruits with fruit the vines that round the thatch eaves run. Okay, ये जो बेलें हैं, ये जो लताएं हैं जो कि क्या कर रही हैं, कॉटेज के चारों तरफ घूमे फिर रही हैं. These vines must be loaded with fruits. अब इन पर क्या कर दिए जाने चाहिए, फ्रूट्स लाद दिए जाने
चाहिए। अब ये वक्त आ गया है कि ये लताएं खूब फल फूली, अब टाइम आ गया है कि इन पे क्या कर देना चाहिए, हमें फ्रूट्स ला देने चाहिए। मतलब कि अब समय आ गया है कि इस पे फ्रूट आ जाने चाहिए। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है, या फिर हम एक मतलब निकालने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि बसंत मतलब इसमें पतझड़ ऋतु में अब क्या आ जाते हैं, इन पे फल फूल आ जाते हैं। एंड देयर इज continuation in the conspiracy to bend with apples the most cottage tree। और ये जो cottage tree हैं, these must be loaded with apples so that they can bend। मतलब कि इन पे इतने फल लाद दिए जाएं ताकि वो इस वजन से क्या कर सकें, ज़मीन की तरफ झुक सकें। एंड fill all fruit with ripeness to the core। and it's time to make all the fruits rip, okay, and there must be ripeness till the core। आखिरी मोमेंट तक फ्रूट का जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ तक क्या कर दिया जाना चाहिए, हमें इन फलों को पका देना चाहिए। एंड द कॉन्स्पिरेसी इज स्टिल गोइंग ऑन टू स्वेल द गोल्ड को स्वेल कर देना है। स्वेल मीन टू मेक इट हेल्दी, इसको फुला देना है, इसको हमें रस से भरपूर बना देना है। एंड प्लम्प द हेजल शेल्स टू स्वेल द गोल्ड, सॉरी मैं गलत लाइन पढ़ गया। एंड प्लम्प द हेजल शेल विथ ए स्वीट कर्नेल। एंड जो प्लम्प है और इसका जो हिस्सा है, उसके बाहरी जो हिस्सा है, उसको हमें क्या कर देना चाहिए, वी नीड हियर वी शुड फिल अप इट विथ स्वीट कर्नेल। स्वीट कर्नेल मीन द ईटेबल पार्ट ऑफ ए फ्रूट, जिसमें हम हिंदी में कहें तो गिरी कह सकते हैं। एंड to set budding more and still more later flowers for the bees। और ये सो सारी चीज़ें हैं, इनको इस तरह से हमें क्या कर देना चाहिए, गिरी से भर देना चाहिए, फल और बीजों से भर देना चाहिए। सो दैट ये कह रहा है टू सेट budding more mean to grow and developed it in the way so that in the following season they can become new plants, okay। so ये कह रहा है कि we have to the conspiracy is still going on in this process। the autumn is not only participant, the sun is also participating agency, and the conspiracy is going on to make these fruits full of juice, full of kernel। and the writer is saying that let them grow more and more and more, and in the final stage they can become ready to regenerate themselves, to become new birds, to become new flowers, to become new plants, so that they can be a resource फॉर द बीज। मतलब कि आने वाले जो सीजन में जब बसंत आएगी और जब गर्म दिन आने शुरू हो जाएंगे, वाम दिन आने शुरू हो जाएंगे, तब क्या करेंगे, ये फल फूलों के रूप में क्या करेगी, बढ़ेंगी, ये बर्ड्स के रूप में बढ़ेगी। और जब बर्ड्स के रूप में बढ़ेंगी सो दे कैन बी ए सोर्स ऑफ हनी, ओके, फॉर द बीज, ओके। एंड अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज। और वो तब तक वहाँ फले फूलेंगे जब तक क्या करेंगे, मतलब कि थिंक अबाउट द वार्म डेज नेवर सीज। सॉरी, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं दे डोंट थिंक अबाउट पास्ट एंड दे डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, दे हैव ओनली ए ड्रीम, एंड द ड्रीम इज़ दैट दीज वार्म डेज विल नेवर एंड। मतलब कि ये जो बसंत है कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। एंड 4 summers हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लेमी सेल्स। और ये जो फल होते हैं, ये जो फूल और जो कलियां होती हैं, उनके मरकंद से
ये अपने जो शेल्स होती हैं उनको भर लेती हैं और ये समर सीजन में क्या कर सकते हैं, उसको पूरा कर लेते हैं। क्लेमी का मतलब होता है वेट, या फिर इनके जो सेल्स होते हैं उनको, सेल का मतलब मधुमक्खी की जो छाते के अंदर जो छिद्र होते हैं जिसमें हमें यूजुअली क्या पाया जिसमें हमें यूजुअली देखने को मिलता है कि वहाँ कुछ हनी पाया जाता है। तो ये यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो ऑटम सीजन है वो हर चीज़ को कंप्लीट कर देती है, चाहे कुछ पका हुआ हो, अध पका हुआ हो, या फिर जो कुछ है उसको स्वीट और फुल ऑफ जूस बना देती है। एंड जो बीज होते हैं, जो फलों के बीज होते हैं, उनको रीजनरेशन के लिए भी क्या कर देती हैं, तैयार कर देती हैं, ताकि आने वाले वक्त में ये फिर से क्या बन सकें, नए प्लांट बन सकें और नए पौधों के रूप में विकसित हो सकें। So this is the first part, the first stanza of the poem. In the following lesson, in the following lecture, we will read the second part of this poem. Okay. Thank you.